Namaskar, I welcome you all to the next episode of our talk show Bikashir Goti. The government of India has launched various strategies and policies to develop the health system in India. In Tripura also these schemes are being implemented. National Health Mission is playing a very crucial role to implement these schemes. So to have a glimpse of the various strategies being implemented in Tripura, we have with us the Mission Director of National Health Mission, Dr. Siddhar Siv Jaiswal. Sir, I welcome you to our talk show. Thank you, ma'am. আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবাকে উন্নত করার জন্য ন্যাশনাল হেলথ মিশন বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে সেই সম্পর্কেই আজ আমরা আলোচনা করব Sir, immunization is a very crucial factor to help our health system. So in that case, National Health Mission is playing a very vital role. So we just want to know about the role what is being played by the National Health Mission. Like you rightly said, through immunization we can prevent the diseases. So right now we are providing vaccines free of cost for DPT, that is diphtheria, pertussis, tetanus, then hepatitis B, Japanese encephalitis, measles, rubella, and rotavirus. So these vaccines we provide free of cost, and recently we have started the free vaccination at private hospitals also. Okay. So these category of vaccines will be provided free at certain private hospitals within the West Tripura district. Okay, so in private hospitals also we can get this immunization system. Yes. Okay. So apart from the सरकारी जो हॉस्पिटल्स है, apart from that जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, वहाँ पर भी आपका टाई अप हुआ है आप नेशनल हेल्थ मिशन का प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ? Yes. उसमें ऐसा टाई अप हुआ है कि जो भी वहाँ पे बच्चे पैदा होंगे तो उनको जो इनिशियल जो बर्थ डोज जो वैक्सीनेशन दिया जाएगा वो NHM उनको सप्लाई करेगा, वो बच्चे को इम्यूनाइज करेंगे और उसके लिए वो पेरेंट्स से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होगा, कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा. अच्छा, वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है. Yes. क्योंकि पहले क्या होता था प्राइवेट हॉस्पिटल्स में डिलीवरी करने से वो जो बेनिफिट्स इम्यूनाइजेशन का मिलता है वो वहाँ पर नहीं मिलता था. तो सरकारी हॉस्पिटल्स में जो डिलीवरी होते हैं वहाँ पर ही फ्री ऑफ कॉस्ट ये मिल जाता था. लेकिन इससे तो मतलब इसका कोई स्कीम का कोई नाम है अलग से? नहीं, ये एक्चुअली नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर में जो वैक्सीन्स आते हैं, अच्छा, वही फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे और उन्हीं प्राइवेट अस्पताल लो में मिलेंगे जिनके साथ हमने टाइप किया, जैसे ILS अच्छा, वो में जो किया हुआ है. एम्पैनल्ड है नेशनल हेल्थ मिशन के साथ. हाँ, जिनके साथ हमने अरेंजमेंट किया है. उसके अलावा कई सारे ऐसे वैक्सीन्स होते हैं जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बाहर होती हैं, जैसे अच्छा. चिकन पॉक्स हो गया, फिर हेपेटाइटिस A का वैक्सीन हो गया, न्यूमोकोकल वैक्सीन हो गया, PCV जिसको बोलते हैं. ये सब नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बाहर की हैं. ये सब तो पेशेंट को अगेंस्ट पेमेंट ये वैक्सीन्स लेना पड़ता है. अच्छा, जो प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम है इसके क्या क्या फीचर्स हैं? ओके. हमारे कंट्री में काफ़ी सारे पेशेंट्स क्रोनिक किडनी डिजीज़ के हैं, जिनको समय समय पे डायलिसिस का ज़रूरत पड़ता है, हीमोडायलिसिस का ज़रूरत पड़ता है. तो अंडर दिस स्कीम we have entered into a memorandum of understanding with private service providers, and they are providing dialysis services at 6 centers in this state. GB Hospital, IGM Hospital, then Gomati, Dhalai, North. One more center is there. So this service is provided free of cost to the patient, and whatever transaction happens for the service charges is being paid directly by the NHM to the service provider. Okay. So this is coming as a big relief for the patients of chronic kidney disease, because otherwise they have to pay around 1,000-1,500 for every dialysis session. And a patient of chronic kidney disease has to undergo say 4 to 5 or 4 to 10 sessions of dialysis in a month, depending on the severity of the condition. ओके, जो किडनी का प्रॉब्लम है हम लोग देखते हैं कि अभी बहुत सारे फैमिलीज़ में ही वो किडनी फेलियर का ये एक प्रॉब्लम है. तो इसमें अगर सरकार से ये जो बेनिफिट दिया जाता है तो डायलिसिस का इसमें यहाँ त्रिपुरा में कितना रिस्पांस है सर? रिस्पांस इसका काफ़ी अच्छा है. जैसे IGM हॉस्पिटल में देखा जाए तो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द मंथ, इवन कोविड टाइम्स में भी लगभग 1200 से 1500 डायलिसिस सेशंस पर मंथ होते हैं. इसी प्रकार से बाकी सारे अस्पतालों में भी ये कांस्टेंट फिगर रहा है. मतलब कोविड के टाइम पे भी कोई जो उसके लिए जो कंज्यूमेबल्स लगते हैं, जो डायलिस जो फ्लूइड होती है, ये इसमें कभी कोई लॉजिस्टिक्स का कोई इशू नहीं रहा. और ये सर्विस अनइंटरप्टेड तरीके से हम लोग प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं. तो नेशनल हेल्थ मिशन का जो है
वो किसी प्राइवेट सेक्टर के साथ टाई अप किया जाता है या फिर ऐसा कुछ मोड है क्या आप लोगों का? यस, इनफैक्ट हमारे काफ़ी सारे सर्विसेज जो हैं जो हम प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ देते हैं, हम ओपन टेंडर के थ्रू उनको इनवाइट करते हैं और जो भी हमारे कंडीशंस फुलफिल करता है उनके साथ हम टाई अप किए हैं. जैसे डायलिसिस इज़ वन ऑफ द सर्विसेज विच वी प्रोवाइड. देन वी हैव फ्री CT स्कैन. We provide it at North Tripura. Then we provide free CT scan services in Dhalai and in Gomati. Now 2 more are coming in Unakoti and in South. They are we have already floated the tender, and in times to come we'll be entering into arrangement with the service provider, which will be providing free CT scan services to these 2 hospitals in addition to the existing 3. Now, then we have the free lab services. Free lab services at 19 centers across the state. The sample is collected by the private service provider, and the report is given, and it is totally free of cost. These are basically the low volume, high end services. Okay. Low volume means जो टेस्ट कम जिनके ज़रूरत पड़ती है और जिनका कॉस्ट ज़्यादा होता है, वो टेस्ट हम लोगों ने इस तरीके से अरेंजमेंट करके रखा हुआ है और पेशेंट को वो फ्री में दिया जाता है. वो फ्री में, वो मतलब डायग्नोसिस से शुरू करके ट्रीटमेंट तक वो पूरा फ्री में मिलता है. वो टेस्टिंग जो पेशेंट के ट्रीटमेंट में, मैनेजमेंट में जो भी टेस्टिंग होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट पेशेंट को दिया जाता है. तो आपके ऐसे कोई मतलब एम्पैनल्ड या कोई ऑर्गेनाइजेशंस है या फिर थ्रू मतलब एवरी टाइम वो थ्रू टेंडर ही होता है? अभी जो एजेंसी है उसको हम लोगों ने आई थिंक 2 to 3 years के लिए हमने इंगेज करके रखा हुआ है. दैट एजेंसी इज़ प्रोवाइडिंग अस द फ्री लैब सर्विसेज. देयर आर सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस ऑल्सो, जिसमें उनको बीच बीच में अपने क्वालिटी सर्टिफिकेशंस हमें सबमिट करने पड़ते हैं और हमारी टीम्स भी जाती है उनके फैसिलिटीज़ को इंस्पेक्शन करती है, उनके लैब का इंस्पेक्शन करती है. सो दीज आर सर्टेन चेक्स एंड बैलेंसेस विच वी एज अ गवर्नमेंट एंटिटी हैव ऑन दी सर्विस प्रोवाइडर्स. दिस इज़ लाइक द सेम इन ऑल दी सर्विस बीइंग प्रोवाइडेड बाय दी प्राइवेट एंटिटीज़. अच्छा, मतलब 2 to 3 years तक वो सर्विस प्रोवाइडर सर्विस प्रोवाइड करते हैं? यस. उसके बाद डिपेंडिंग ऑन म्यूचुअल कंसेंट, इफ बोथ द पार्टीज लाइक NHM एंड द सर्विस प्रोवाइडर, इफ दे एग्री, वी कंटिन्यू द सेम अरेंजमेंट फॉर अनदर फ्यू ईयर्स. इफ नॉट, देन वी फ्लोट अ फ्रेश टेंडर एंड एंगेज अ न्यू पार्टी. अच्छा, मतलब वो आपके सरकारी हॉस्पिटल्स के साथ ही उनका टाई अप हो जाता है? यस, सेंट्रली कर लेते हैं. सेंट्रली कर लेते हैं. और किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ भी ऐसा कुछ टाई अप है सर, उन ऑर्गेनाइजेशंस का जो नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से कर रहे हैं? प्राइवेट हॉस्पिटल्स में देखिए, जैसे हमने इंश्योरेंस की जो स्कीम थी लास्ट एपिसोड में जो हमने डिस्कस किया था, जन आरोग्य योजना, वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ है. जैसे त्रिपुरा में हमारा ILS और TMC के साथ है. तो जिसके पास वो JY जन आरोग्य योजना का कार्ड होता है, वो इन दोनों हॉस्पिटल्स में जाके फ्री में ट्रीटमेंट करा सकता है. अच्छा, फ्री में उनको ट्रीटमेंट, कैशलेस बेनिफिट उनको दी जाएगी. सिमिलरली RBSK के अंडर में प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, बाहर के हॉस्पिटल्स हैं. तो इस टाइप के अरेंजमेंट्स भी हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ हैं, जो कि हमारे पेशेंट्स को वो फ्री में ट्रीटमेंट देते हैं और जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो NHM के साथ डायरेक्टली होता है. अच्छा, তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ন্যাশনাল হেলথ মিশন কিন্তু বিভিন্ন প্রাইভেট সেক্টরসের সাথেও কিন্তু টাই আপ করছে এবং এতে কি হচ্ছে, আমরা সরকারি হাসপাতাল, বেসরকারি হাসপাতাল বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু আমরা সেই পরিষেবাটা পাচ্ছি এবং এই পরিষেবার কারণে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই যে ন্যাশনাল ডায়ালিসিস যে প্রোগ্রামটা রয়েছে, তাতে যে কিডনি পেশেন্টসরা রয়েছে, অনেক ফ্যামিলিতেই কিন্তু কিডনি পেশেন্টস থাকে এবং সেই ডায়ালিসিস করার সেই ইকোনমিক কন্ডিশন থাকে না বলে কিন্তু বিভিন্ন পেশেন্টরা বিভিন্ন জায়গায় মারা যাচ্ছে. এখন এই যে ন্যাশনাল হেলথ মিশনের এই প্রোগ্রামের মধ্যে এই যে ন্যাশনাল ডায়ালিসিস স্कीमটা রয়েছে, এতে কিন্তু আমরা অনেকেই উপকৃত হব. तो सर, इस मिशन डायरेक्टर आप यहाँ पर त्रिपुरा में हैं, बेसिकली आप सर कहाँ से हैं? I belong to a historical place, Chauri Chaura. It is near Gorakhpur in Uttar Pradesh. So this is a small town and the people there are very good. So I belong basically to Chauri Chaura in Uttar Pradesh. कुछ स्पेशलिटी सर उस जगह के बारे में आप शेयर करना चाहेंगे? हाँ, हिस्टोरिकल इसलिए मैंने बताया क्योंकि वहाँ पे 1922 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पे वहाँ पे एक प्रोटेस्ट वायलेंट हो गया था, तो एक जेल को जला दिया गया था, जिसकी वजह से हम लोगों ने पढ़ा भी था वो चौरी चौरा मूवमेंट जो है, जिसके बाद महात्मा गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कॉल ऑफ कर दिया था. ये एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है. बाकी लोग वहाँ के अच्छे हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है वहाँ पे. अच्छा सर, हमारा जो हम फिर से लौट के आते हैं नेशनल हेल्थ मिशन पर,
सर, नेशनल हेल्थ मिशन में जो हमारा ये सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं रूरल एरियाज़ और अर्बन एरियाज़ में, तो ये सारे जो स्कीम्स है उसका अवेयरनेस आप कैसे करते हैं? देखिए, सारे प्रोग्राम वाइज हम लोग के पास अवेयरनेस के लिए मटेरियल हम लोग के लिए एक डेडिकेटेड आईईसी सेक्शन है, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन सेक्शन है, और रेलेवेंट मटेरियल हम न्यूज़पेपर एड्स, देन रेडियो जिंगल्स, केबल चैनल में स्क्रोल, देन टॉक शोज लाइक दिस वन, वी रिजॉर्ट टू मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। फिर मार्केट प्लेसेस में हम लोग माइकिंग कराते हैं, जो क्राउडेड प्लेसेस होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं, वहाँ पे हम फ्लेक्स लगाते हैं, लीफलेट्स देते हैं, पैम्फलेट्स करते हैं। फिर विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे पे हम लोग स्ट्रीट प्लेस करते हैं, ड्रामा करते हैं। तो कई सारे हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, एलईडी स्क्रीन्स हैं, जो स्मार्ट सिटी अगरतला स्मार्ट सिटी की एलईडी स्क्रीन्स के थ्रू हम लोगों ने एडवर्टीजमेंट शुरू कर दिया है। तो वी यूटिलाइज ऑल द प्लेटफॉर्म्स पॉसिबल टू कन्वे आर मैसेज टू द पीपल अबाउट द सर्विसेज फॉर विच दे आर एंटाइटल्ड। আর আমাদের যে ত্রিপুরাবাসীরা আছে যারা মনে করুন এই বিষয়ে জানে না, তারা ন্যাশনাল হেলথ মিশনের বিভিন্ন যে ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে অফিসগুলো আছে সেখানে গিয়েও তো এই ব্যাপারে জানতে পারে, মানে জেনারেল পাবলিক যদি কেউ জানতে চায় সে ব্যাপারে। Yes, we try to put the relevant IEC material in all the hospitals. For example, यदि कोई मैटरनल सर्विस के लिए कोई स्कीम आती है तो उसका हम लोग IEC OPD के बाहर कर देते हैं, प्लस जहाँ पे महिलाएं हमारी एडमिट होती हैं डिलीवरी से जस्ट पहले, वहाँ पे हम लोग कर देते हैं। फिर अगर कोई इम्यूनाइजेशन रिलेटेड होता है तो वो हम ANC के टाइम पे ही कर देते हैं। वो जो रूरल एरियाज़ में जो सर सब सेंटर्स हैं, आंगनवाड़ी सेंटर्स है, वहाँ पर भी तो डिस्प्ले मटेरियल्स मिलते होंगे, क्योंकि गांव में जब महिलाएं जाती हैं आंगनवाड़ी सेंटर में इम्यूनाइजेशन के लिए भी जाती हैं, तो तब उनको दिखने को मिलता है। और वो इस बारे में आंगनवाड़ी वर्कर जो है वो लोग भी ऐसा कोई मीटिंग वगैरह कुछ कंडक्ट करते हैं क्या, कि ये सब कुछ, ये सारे जो स्कीम्स है सरकार के, वो जानना चाहिए लोगों को? अगर देखा जाए तो जो हमारा हेल्थ का जो डिटर्मिनेंट होता है, दैट डिपेंड्स ऑन नॉट जस्ट द हेल्थ पैरामीटर्स बट अदर थिंग्स ऑल्सो। जैसे आसपास का सैनिटेशन, सफाई बहुत मायने रखती है, लोगों का न्यूट्रिशन बहुत मायने रखता है। तो विलेज लेवल पे एक कन्वर्जेंस जो आता है सभी स्कीम को विलेज लेवल पे हम लोग विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन डे के माध्यम से सभी स्कीम्स के बारे में वहाँ पे लोकल कम्युनिटी को बताते हैं। जनरली इसका जो वेन्यू होता है ये आंगनवाड़ी सेंटर में रखते हैं, और उसमें जो तीनों जो डिपार्टमेंट के जो फील्ड लेवल वर्कर्स होते हैं, फील्ड फंक्शनरीज होते हैं, वो आते हैं और अपने अपने स्कीम के बारे में बताते हैं, और साथ ही साथ में सुविधाएं भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे आशाज होते हैं हमारे जो हेल्थ की साइड से, आशा और MPW होते हैं। फिर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से आंगनवाड़ी वर्कर और आंगनवाड़ी हेल्पर होते हैं। फिर हमारे पंचायत की तरफ से मेंबर्स होते हैं, PRI मेंबर्स होते हैं, एमिनेंट पर्सनालिटीज़ होते हैं। तो उससे एक कंप्लीट एक कवरेज दिया जाता है कि विलेज लेवल में किस प्रकार से सारे स्कीम्स को हम लोग कन्वर्ज करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको पहुंचा सके। क्योंकि गांव में क्या होता है, जो PRI मेंबर्स होते हैं, जैसे ग्राम के प्रधान होते हैं, तो उनका जो एक फिगर है वो एक बहुत ही क्रेडिबल फिगर है, क्योंकि गांव के लोग हेल्थ डिपार्टमेंट के जो वर्कर्स हैं, MPWs हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, वो तो बोलेंगे ही स्कीम्स के बारे में। जब वो सुनते हैं कि ग्राम के जो प्रधान हैं वो इस बारे में कुछ बोल रहे हैं, तो इसका क्रेडिबिलिटी और भी बहुत ज़्यादा होता है। तो गांव के जो प्रधान हैं उनको भी क्या नेशनल हेल्थ मिशन से कोई ट्रेनिंग वगैरह दिया जाता है? देखिए, प्रधान हो गए या फिर कोई एमिनेंट रिलीजियस लीडर्स हो गए, हमारे देश में रिलीजन को लोग बहुत सीरियसली, यस, तो रिलीजियस लीडर्स हो गए, तो उनके लिए भी हमारे मटेरियल्स होते हैं। अभी पिछले महीने ही हम लोगों ने नेशनल हेल्थ मिशन के जितने भी प्रोग्राम्स हैं, कौन कौन उसके लिए एलिजिबल होते हैं, क्या क्या उसमें बेनिफिट्स मिलते हैं, उसका एक बुकलेट हमने पब्लिश कराया है और हमने उसको सर्कुलेट कराया है डाउन टू each and every PRI members. It has been circulated, that particular हर ग्राम booklet. पंचायत में ये बुकलेट अवेलेबल है? Yes, with the message of the Honorable CM Tripura, the message has been displayed there. Yeah, it has been displayed on the first page of the booklet, and the other pages it has various schemes of the National Health Mission and the details which are required.
तो सर जो विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन कमिटी है तो उनका क्या रोल होता है? ये कमिटी देखिए, सबसे पहले तो स्कीम के बारे में अवेयरनेस लोगों को देते हैं। दूसरा, जो सर्विस वो लोग प्रोवाइड करते हैं वो उस पर्टिकुलर ओकेजन पे वो लोग वो सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं। अच्छा। जैसे अगर कोई गैदरिंग होती है गांव में किसी, तो उसमें अगर एंटीनेटल चेकअप होना है प्रेगनेंसी वाला तो वो कर लेते हैं। बच्चे आते हैं तो उनको इम्यूनाइजेशन कर लेते हैं। और किसी को कोई अगर डिफॉर्मिटी होती है किसी बच्चे को तो आरबीएस के केंद्र में उसकी स्क्रीनिंग कर लेते हैं। और आशाज का हम लोग जो है उसको एक शेड्यूल बना लेते हैं, साल भर का शेड्यूल बना लेते हैं। और ये हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि इस पर्टिकुलर महीने का जो विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे होगा उसमें क्या क्या टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म होता है गवर्नमेंट के स्कीम्स के बारे में बताने में, लाइफस्टाइल के बारे में बताने में। जैसे आजकल ये पैंडमिक का टाइम चल रहा है तो पैंडमिक के बारे में अवेयरनेस करने के लिए तो ये हम प्लेटफॉर्म इसको यूटिलाइज करते हैं। तो विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे होता है VHND, तो इस डे में आपके हेल्थ डिपार्टमेंट से कौन कौन होते हैं, या फिर ये कन्वर्जेंस है जो PRI मेंबर्स भी होंगे, हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स, और कौन से लाइन डिपार्टमेंट्स इसमें इन्वॉल्व है? प्राइमरीली अगर देखा जाए तो हेल्थ होता है इसमें, RD डिपार्टमेंट होता है, देन स्वच्छ भारत मिशन के लिए डिपार्टमेंट होते हैं, देन न्यूट्रिशन के लिए जो हमारे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट होता है, पोषण अभियान वो लोग देखते हैं। तो मेनली अगर देखा जाए तो ये 4-5 डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनका इम्पोर्टेंट रोल होता है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि न्यूट्रिशन जो है वो हमारे जो माएँ हैं घर में, वो न्यूट्रिशन के ऊपर अभी भी इस एज में भी न्यूट्रिशन के ऊपर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो इससे क्या होता है, जब वो महिला गर्भवती होती है तो वो खुद ही इतना न्यूट्रिशन का इतना अभाव होता है उनमें कि इसके वजह से डिलीवरी होने के बाद जो बच्चा पैदा होता है उसको भी मतलब पोषण ठीक से नहीं मिल पाता है। तो इस बारे में न्यूट्रिशन के ऊपर नेशनल हेल्थ मिशन क्या कोई नया स्कीम है इसके ऊपर, या कैसा काम चल रहा है इसमें? इसमें देखिए कुछ स्कीम्स जैसे अनीमिया मुक्त भारत होता है। अनीमिया मुक्त भारत में जैसे आपको पता होगा कि हमारे देश में 30% तक महिलाओं को अनीमिया पाया जाता है। तो उसमें फॉर एग्जांपल अनीमिया मुक्त भारत के अंडर में हम लोग आयरन फोलिक एसिड का सप्लीमेंट दे देते हैं, प्लस एक लाइफस्टाइल क्या क्या खाना चाहिए, जो लोकली अवेलेबल जो वेजिटेबल्स होते हैं जिनसे उनका हीमोग्लोबिन बढ़ सकता है वो करते हैं। साथ ही साथ में जो डीवॉर्मिंग करते हैं, क्योंकि डीवॉर्मिंग करने से वो जो पैरासाइट्स होते हैं जो हमारे न्यूट्रिशन हमसे ले लेते हैं और जिसकी वजह से एनीमिया होता है, उसके बारे में बताते हैं। फिर हैंड वॉशिंग टेक्निक के बारे में बताते हैं। और हम नेशनल डीवॉर्मिंग जो डे है वो भी तो हम ऑब्जर्व करते हैं, हर साल ही करते हैं। यस, इस बार जैसे हमने 28 सितंबर से 5 अक्टूबर तक ये हमने कैंपेन चलाया था। साथ ही साथ में हमारे आशा वर्कर्स सारे स्कीम्स के बारे में स्क्रीनिंग किया था, जैसे मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, लेप्रेसी हो गया, इवन कोविड का भी स्क्रीनिंग साथ ही साथ में चला था। तो इस टाइप से हम लोग कोशिश यही रहती है कि ग्राउंड में जाकर सारे के सारे प्रोग्राम्स का कन्वर्जेंस हो जाए। सारे प्रोग्राम्स के साथ कन्वर्जेंस हो के मतलब जो वहाँ पर जो गांव के महिलाएं जो होती हैं, माएँ होती है, जैसे आंगनवाड़ी सेंटर में होती हैं, तो उनको सारे स्कीम्स के बारे में उनको पता चले। यस। तो ये नेशनल डीवॉर्मिंग डे में भी तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ तक कि स्कूल्स में भी वो टैबलेट्स बच्चों को दिया जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, हम देखते हैं कुछ माएँ मतलब बच्चों को भेजना नहीं चाहती है कि ये टैबलेट है खाएंगे, तो कभी कभी बच्चों को बुखार आ जाता है। और ऐसा इसमें जो IEC जो है आपने बोला है, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मिस कम्युनिकेशन या फिर मिस इंटरप्रिटेशन रहेगा तो जो हमारा जो गोल है नेशनल हेल्थ मिशन का, जो गोल है कि ये जो स्वस्थ परिसेवा है वो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, सबको पता चले इस बारे में। तो इसमें आपको क्या लगता है, थोड़ा और इम्प्रूवमेंट क्या ज़रूरी है कम्युनिकेशन में? Yes, we try various methods to remove such kind of communications from the minds of the parents. Like जब हम deworming कराते हैं तो deworming कराते समय क्लास के सामने जो टीचर होती है वो भी साथ में एक टैबलेट लेते हैं, ताकि लोगों को ट्रस्ट रहे कि टीचर के ऊपर भी लोग टीचर को काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं। तो इस टाइप के तरीके हम लोग अपनाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचा जाए, मिसकम्युनिकेशन कम हो। आजकल के ज़माने में जैसे सोशल मीडिया हो गया है तो इट इज़ अ डबल एज्ड स्वॉर्ड। जितने अच्छे से उसमें
पॉजिटिव इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, नेगेटिव भी उतनी तेज़ी से ही होता है. तो वी ट्राई वेरियस टेक्निक्स, दैट इज़ वाई वी इन्वॉल्व रिलीजियस लीडर्स, द एमिनेंट पर्सनैलिटीज़, the celebrities of the state, the political leaders at the state level, local level, district level, to get our message conveyed to the target beneficiaries. क्योंकि कम्युनिकेशन अगर अच्छा होता है तो जो भी स्कीम है वो हमारे ग्रास रूट लेवल के जो फंक्शनरीज है उनके थ्रू ही हमारे गांव-गांव में ये पूरा फैल जाता है. तो कम्युनिकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टूल है. Yes. जिसकी वजह से हमारे गांव के जो महिलाएं हैं, जो माएँ हैं, जो एडोलेसेंट गर्ल्स है, जैसे ऐसा होता है कि कई स्कूलों में जो एडोलेसेंट गर्ल्स होते हैं 10th स्टैंडर्ड के 11th स्टैंडर्ड के, वो भी गांव घर में जाके मम्मी को पापा को बोलते हैं नहीं ये चीज़ आप ठीक नहीं कर रहे हो, खाने से पहले हाथ साबुन से धो, आप लोग खाना अच्छे से मतलब पका के खाओ. वो सब कुछ जो है वो स्कूल में वो सिखाने से बहुत ही इफेक्टिव रहता है. तो अभी इस पेंडेमिक का जो ये सिचुएशन है, कोविड का सिचुएशन है, इसमें नेशनल हेल्थ मिशन क्या रोल प्ले कर रही है? ओके, नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर जो भी मेडिकल ऑफिसर्स हैं, हमारे नेशनल आयुष मिशन के आयुष मेडिकल ऑफिसर्स हो गए, डेंटल ऑफिसर्स, लैब टेक्नीशियंस, फार्मासिस्ट, ये सभी लोग हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं जो कि टेस्टिंग से लेकर ट्रीटमेंट ऑफ कोविड पेशेंट्स ये कर रहे हैं. साथ ही साथ में हम लोग NHM के साइड से जो कंज्यूमेबल्स होते हैं, लॉजिस्टिक्स, वो प्रोवाइड कर रहे हैं. मास्क हो गया, PPE लेयर्स हो गए, ग्लव्स हो गए. रिसेंटली हम लोगों ने हमारे स्टेट में 600 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स दिए हैं, जिसकी वजह से हमारे स्टेट में अराउंड 700 to 800 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हो गए हैं. अराउंड 80 वेंटिलेटर्स स्टेट में हैं. देन वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू हैव ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स, प्लस इन द IGM हॉस्पिटल एंड इन सिपाही जला डिस्ट्रिक्ट. सो टोटल 8 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स वी आर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट विद द हेल्प ऑफ द UNDP, United Nations Development Program. So these are some of the activities. Then again, like you said, we are creating awareness among the public, what things we should be doing, what things we should not be doing through NHM. The most important thing is कि इस टाइम में जब लोग हॉस्पिटल आना बंद कर दिए हैं, कम कर दिए हैं, OPD, IPD, तो जो रूटीन सर्विसेज होती हैं जैसे कि मदर का एग्जामिनेशन हो गया, बच्चों का इम्यूनाइजेशन हो गया, देन मलेरिया का ट्रीटमेंट हो गया, ट्यूबरकुलोसिस, these things we are providing simultaneously with the COVID services, and we are getting good results. Like immunization is more than 90% in our state. क्योंकि कोविड में भी हम देख सकते हैं कि बहुत लोग ऐसे हॉस्पिटल में जाने से ही कोरोना हो जाएगा, ऐसा एक मिस इंटरप्रिटेशन, एक मिस कम्युनिकेशन, एक गैप है यहाँ पर, जिसकी वजह से लोग हॉस्पिटल जाना नहीं चाहते हैं. मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो तो लोग जाते हैं, वरना अवॉइड करते हैं. तो इस पेंडेमिक में हम लोग देख सकते हैं कि इस कोरोना को लेकर बहुत सारे ऐसे मैसेजेस भी डिलीवर होते हैं थ्रू, जैसे व्हाट्सएप होते हैं, जो मतलब एकदम ही रॉन्ग है, लेकिन फिर भी लोग इसको ध्यान में रख के बहुत पैनिक हो जाते हैं. तो इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? वी शुड ऑलवेज हैव सम रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. जो गवर्नमेंट के प्रेस नोट्स होते हैं, then we have various circulars by the government, उस पर विश्वास करना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा होगा. Otherwise there is lot of misinformation regarding this pandemic among the people कि टेस्टिंग नहीं कराना चाहिए, फिर मास्क पहनने से कुछ नहीं होता है, गैदरिंग करने से कुछ नहीं होगा. So these kind of misinformation should be countered. तो उसके लिए बेस्ट वही होगा जो रिलायबल सोर्सेज होते हैं, उनसे ही केवल इन्फॉर्मेशन लिया जाए. अदरवाइज़ जो पैरेलली जो अनरिलायबल सोर्सेज आते हैं, उनको ना ही हमें उस पर सोच विचार करना चाहिए, ना ही हमें उसको आगे प्रोपोगेट करना चाहिए, उसको वहीं पे स्टॉप कर देना चाहिए. क्योंकि कोरोना में जैसे हैंड वॉशिंग का वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. फिर जब हम बाहर निकले तो मास्क यूज़ करना, सैनिटाइज़र यूज़ करना, तो ये सब अभी हम देखते हैं जब भी हम निकलते हैं. मतलब ऐसा बाहर ऐसा मतलब या फिर मार्केट में ऐसा कुछ बहुत ही कम लोग होंगे जो मास्क यूज़ नहीं करते. ये अभी एक ट्रेंड ही हो चुका है कि मास्क यूज़ करना चाहिए. फिर भी हम देखते हैं किसी मतलब मार्केट एरियाज़ में या फिर कभी किसी शॉपिंग मॉल्स में लोग फिर भी गैदर करते हैं. तो आपको क्या लगता है इसमें कम्युनिकेशन का कोई गैप है क्या, या लोगों को और भी जागरूक होना चाहिए? Yes, we are constantly trying this. मास्क एनफोर्समेंट भी करते हैं, उसमें
फ़ाइन भी कलेक्ट करते हैं, प्लस फ्री मास्क भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एनएचएम की तरफ से हमने वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को ऑलमोस्ट 50,000 क्लॉथ मास्क Okay. हमने ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट किया है, प्लस अगरतला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ कोऑर्डिनेट करके हम लोग फ्री मास्क मार्केट प्लेसेस में भी देते हैं, पेनल्टी भी कलेक्ट करते हैं। तो कई तरीक़ों से हम लोग आउटरीच करना चाह रहे हैं, माइकिंग कराते हैं, लोगों को बताते हैं थ्रू आर सेलिब्रिटीज़, थ्रू आर पॉलिटिकल लीडर्स व्हाट शुड बी डूइंग, व्हाट शुड नॉट बी डूइंग। समहाउ कॉम्प्लेसेंसी आ जाती है। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी चैलेंजिंग फॉर द अपकमिंग टाइम्स। फेस्टिवल टाइम रहेगा, काफ़ी हाँ, लोग तो गैदर दुर्गा होंगे। पूजा है सामने, तो ये Yes. बहुत ही एक चैलेंजिंग मैटर रहेगा। यस, क्योंकि यहाँ पर तो लोग, ये फेस्टिवल ऐसा ही है कि यहाँ पर लोग गैदर होना चाहेंगे, मतलब इसमें बहुत ही क्रूशियल एक पार्ट होगा कम्युनिकेशन के, जैसे माइकिंग के थ्रू हो या फिर बहुत सारे ब्रोशर्स डिस्ट्रीब्यूट करके हो, लोगों को समझाना कि किसी भी हालत में गैदरिंग नहीं होना चाहिए। यस। इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो हमारे क्लब्स होते हैं, पूजा पंडाल कमिटीज़ होती है, उनके साथ वेरियस मीटिंग्स किया गया है। अपने पंडाल के साथ साथ वो कोरोना रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देंगे, पैम्फलेट्स देंगे, वॉलंटियर्स रहेंगे। तो हर पंडाल में ही ऐसे पैम्फलेट्स Yes. रहेंगे, और इसके साथ सैनिटाइज़र और मास्क वो वगैरह भी होंगे क्या? मतलब अगर कोई ऐसा मिले, कोई ऐसा दिखे कि जो विज़िट करने आया है उसके पास मास्क नहीं है, तो इस बारे में भी अगर मतलब कोई फेस मास्क दे या फिर सैनिटाइज़र दे वहाँ पर मिले, तो ये ऐसा कुछ पॉलिसी कुछ नया बनने वाला है क्या? मतलब ऐसा कोई पॉलिसी तो नहीं है, बट डेफिनेटली दीज social activists, these organizations, on their own initiative, they can take this thing. They can take up this thing through their volunteers. If somebody is not having a mask, they can provide it to them. They can provide hand washing facilities to them. Then no mask, no entry kind of system Yes. can be introduced. If you are not having a mask, you will not be allowed entry. या फिर पंडाल में भी ऐसा अगर डिस्प्ले है, नो Yes. मास्क नो एंट्री। So for that, we have to have active cooperation from everyone. यस। From the organizers of the festival, from the public, from media, from everyone basically. Yes. So that should be a joint effort. Right. তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই করোনার সময় আমাদের যদি বাঁচতে হয় তাহলে কিন্তু আমাদের মাস্ক অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে, হাত ভালো করে সাবান দিয়ে ধুতে হবে, স্যানিটাইজার ইউজ করতে হবে, এবং এই ন্যাশনাল হেলথ মিশন থেকে কিন্তু এই করোনার যে প্যান্ডেমিক রয়েছে এর মধ্যে কিন্তু বিভিন্ন বড় একটা ক্রুশিয়াল রোল প্লে করেছে, এবং এই আইসি ইনফরমেশন এডুকেশন কমিউনিকেশন এটা কিন্তু খুব ইম্পর্ট্যান্ট। এই যে গ্রামে আমাদের বিভিন্ন যে পরিষেবাগুলো, স্বাস্থ্য পরিষেবাগুলো দেওয়া হচ্ছে ন্যাশনাল হেলথ মিশন থেকে, সেগুলো কিন্তু একমাত্র আইসির দ্বারা, কমিউনিकेशনের দ্বারাই কিন্তু সেগুলো পৌঁছানো হচ্ছে। तो सर, तो इस बारे में हमारे त्रिपुरा वासी को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बोलना चाहूँगा कि सरकार जैसे बार बार बोल रही है मास्क व्यवहार करने के लिए, देन तभी बाहर निकलिए जब आपको ज़रूरत है, और जब बाहर निकलते हैं तो मास्क लगाइए, आपसी दूरी बना के रखिए, कम से कम 2 गज की दूरी होनी चाहिए। फ्रीक्वेंटली हैंड वॉश कीजिए, अपना पर्सनल हाइजीन पे ध्यान दीजिए। ये सब कोरोना स्पेसिफिक जो बिहेवियर्स हैं, लाइफस्टाइल है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे। साथ ही साथ में अगर आपको कोई सिम्टम हो रहा है तो यू शुड गो फॉर टेस्टिंग। अगर आप पॉजिटिव आ भी जाते हैं तो यू विल नॉट बी forced to stay in a COVID care facility. There is an option of home isolation, for which from NHM we have already provided 6,000 pulse oximeters across the state. तो जो भी होम आइसोलेशन में जाएगा उनको सेल्फ मॉनिटरिंग, हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए एक पल्स ऑक्सीमीटर प्लस जो नेसेसरी मेडिसिन होते हैं और सप्लीमेंट्स होते हैं वो दिए जा रहे हैं। सो देयर इज़ नो नीड टू पैनिक। बेसिकली आपको अगर सिम्टम हो रहा है तो दे शुड बी गोइंग फॉर दिस टेस्टिंग। अपने आप को आइसोलेट कर दीजिए, परिवार के साथ घुलिए मिलिए नहीं, बाहर मत जाइए। 99% केसेस में ये मतलब अपने आप रिकवरी हो जाती है। मोर्टेलिटी अगर देखा जाए इस वायरस का तो 1% आपको बहुत सेफ रहना पड़ेगा। यस। Thank you very much, sir, for coming to our show. So we have come to an end of our talk show.
আমরা দেখতে পেয়েছি যে ন্যাশনাল হেলথ মিশন কিন্তু একটা বিশাল বড় রোল প্লে করছে আমাদের স্বাস্থ্য পরিষেবাকে উন্নত করার জন্য, এবং তার সাথে সাথে আমাদের এই করোনা প্যান্ডেমিকের সময়ও কিন্তু ন্যাশনাল হেলথ মিশন বিশাল বড় একটা রোল প্লে করেছে। এবং আমরা যাতে সুস্থ থাকতে পারি এই প্যান্ডেমিকের সিচুয়েশনে, আমরা যাতে নিজেদেরকে আইসোলেট করে রাখতে পারি, যদি কোনোভাবে কোনো ধরনের করোনা পজিটিভ কোনো ধরনের আমাদের মধ্যে সিমটমস থাকে তাহলে আমরা নিজেদের ঘরে আইসোলেটেড হয়ে থাকবো, সেই বিষয়ে কিন্তু ন্যাশনাল হেলথ মিশনের রোলটা অনেকটাই গুরুতর। So we hope that in the coming days, National Health Mission will work much more efficiently and this will surely improve our health standard. Namaskar.